Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the video, understand the concept and complete your book exercises which are given at the end of the book. So children, in the previous video, we had started chapter 4, that is Window Operating System. So here we are going to, children, our chapter is chapter 4, Window Operating System. Window Operating System. So children, as we know, in this chapter we will be reading about Windows 7. So children, Windows 7 is one of the operating system. In this chapter we were reading about Windows 7. So children, till now we have understood that starting Windows, page number 27. Today we are going to revise what we did in our previous video. So in the previous video children, we were doing starting Windows 7. Here children, cold booting. Cold booting means children, this word is familiar to you because in the previous chapter also we had studied about cold booting. Here children, cold booting means starting the computer when it is switched off. जब कंप्यूटर बंद है और काफ़ी समय से बंद है, यानी कि मतलब कुछ समय पहले हमने काम किया था, completely all the parts of the computer including the screen, monitor, CPU, everything is closed and electric power से भी बंद है और हम उसे शुरू करें ताकि हमें कोई काम करना है. तो this is called starting from the beginning and this is cold booting. कंप्यूटर बंद है, हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, विंडोज 7 स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली. मतलब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमने स्क्रीन, एज यू नो चिल्ड्रन, मॉनिटर ऑल्सो हैज़ ऑन ऑफ बटन. जब हम मॉनिटर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली देर इज अ विंडो इन फ्रंट ऑफ यू. दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो. हम इसे वेलकम विंडो कहते हैं. तो यहाँ पे जो विंडो अपीयर होता है चिल्ड्रन, दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो. द फर्स्ट विंडो you get in front of you, this is called welcome window. WELCOME window. This window which you get for just after switching on the computer is called welcome window. जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं और हमें एक स्क्रीन मिलता है, एक विंडो मिलता है, उसको हम वेलकम विंडो कहते हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो ये वेलकम विंडो अपीयर होता है, ये कंप्यूटर को ऑन करते ही मिल जाता है. So you may be asked to enter the password. Now after you get this window children, you can see in your book also there is a window which is asking for the password, because children, we give some password, we save some password in our computers in order to keep it safe, so that हमारे एब्सेंस में हमारे कंप्यूटर को कोई और छू ना सके या फिर हमारी कोई प्राइवेसी कोई और जान ना सके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एवरीथिंग वी कीप इन आवर कंप्यूटर और लैपटॉप, तो उन सारी चीज़ों को कोई यूज़ ना कर सके या देख ना सके, इसलिए हम उसको लॉक करके रखते हैं. और उसके लिए व्हेनेवर वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, इट आस्क्स फॉर द पासवर्ड टू नो वेदर द करेक्ट पर्सन इज यूजिंग द कंप्यूटर और नॉट. तो यहाँ पे अगर स्कूल में भी आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होगे, आप लैब में अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर दे विल आस्क फॉर द पासवर्ड. यू आस्क द पासवर्ड फ्रॉम योर टीचर एंड एंटर दैट पासवर्ड एंड यू स्टार्ट योर कंप्यूटर. सिमिलरली एट होम ऑल्सो, अगर आप कंप्यूटर खोल रहे हो तो आपको पासवर्ड नहीं पता है, योर पेरेंट्स में बी हैविंग द पासवर्ड, सो यू कैन आस्क देम एंड स्विच ऑन द कंप्यूटर. सो हियर चिल्ड्रन, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो विंडोज 7 में हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं या मॉनिटर को स्विच ऑन करते हैं, हमें एक विंडो दिखाई देता है. दिस विंडो इज कॉल्ड वेलकम विंडो. द फर्स्ट विंडो दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस इज कॉल्ड वेलकम विंडो. जो सबसे पहला विंडो हमारे सामने खुलता है, दैट विंडो इज नोन एज वेलकम विंडो. Once again I am writing the first window children after switching on the monitor we get is called welcome window. उस विंडो को हम welcome window कहते हैं. And this window asks for the password. It will ask for the password. और जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो, there is a go button. You click on go button and children you have another window. हमारे पास दूसरा विंडो होता है. This window is called desktop window. Desktop
window. So this is the first window from where you can start working. आपको जो भी काम करना है आप इस विंडो से काम करना शुरू कर सकते हो. तो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द जो भी स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप विंडो. और जैसे ही आप इसको खोलते हो आपके पीछे एक स्क्रीन दिखाई देती है, बैकग्राउंड दिखाई देता है. दैट बैकग्राउंड कैन बी एडजस्टेड और उसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो. और उसके नीचे एक बार होता है जिसको हम कहते हैं है बॉटम में, सबसे नीचे होता है बॉटम में, हम उसको स्टेटस बार कहते हैं और हम उसको टास्क बार भी कह सकते हैं. और उस पर जो भी हम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है. तो फर्स्ट थिंग यू विल स्विच ऑन द कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप, एंड द लास्ट थिंग विच यू डू इज द स्विचिंग ऑन द मॉनिटर. जैसे आप मॉनिटर ऑन करते हैं, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर इज अ डेलिकेट मशीन, इट नीड्स अटेंशन एंड इट नीड्स टू बी हैंडल्ड केयरफुली, और इस ताकि वो ख़राब ना हो. और इसलिए चिल्ड्रन हम उसे स्टेप बाय स्टेप मेथड प्रोसीजर से ही ओपन करते हैं. सो फॉर दैट चिल्ड्रन वी स्विच द कंप्यूटर फ्रॉम द स्विच बोर्ड. हम सबसे पहले स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड से कंप्यूटर को ऑन करते हैं. देन वी स्विच ऑन द यूपीएस एंड देन सीपीयू एंड देन मॉनिटर. मॉनिटर को जैसे ही हम ऑन करते हैं वी गेट वेलकम विंडो. हमें वेलकम विंडो मिलता है. फ्रॉम देयर वी गिव पासवर्ड. जैसे हम पासवर्ड देते हैं वी क्लिक ऑन द गो एरो एंड वी गेट अनदर विंडो. दिस विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप विंडो. Yesterday also we had understood about the desktop window. So children, here you can see on this page number 27 there is a window. यहाँ ऊपर some icons are made. दो icons हमें दिखाई दे रहे हैं. These two icons का मतलब होता है as we studied in the beginning, ये जो MS विंडो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. इसमें हम इमेजेस को लेकर के, पिक्चर्स को लेकर के, आइकन्स को लेकर के हम काम करते हैं, या मीनूज को यूज़ करके काम करते हैं. मीन्स हमें यहाँ पे कंप्यूटर में हर चीज़ दी होती है, या तो वो आइकन के फॉर्म में होता है, या पिक्चर के फॉर्म में होता है, या फिर मेन्यू के फॉर्म में होता है. फ्रॉम द मेन्यू और पिक्चर और आइकन वी कैन do whatever we want to do, and because we are using the icons or menus, with the single click or double click we can operate the software. Whichever software you want to run you can operate on single or double click. So everything is present in the program itself. हमें कोई भी कमांड नहीं याद करने की ज़रूरत है या कमांड देने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिंगल माउस के क्लिक पे या डबल, समटाइम्स ऑन डबल क्लिक वी कैन ऑपरेट द कंप्लीट सॉफ्टवेयर. कोई भी सॉफ्टवेयर हो, MS वर्ड हो, MS पेंट हो, MS एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या फिर हम नोट पैड यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, हम इन सारे प्रोग्राम्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं विद द क्लिक ऑफ अ माउस. नाउ अब जब हमें जो डेस्कटॉप विंडो मिलता है चिल्ड्रन, देयर वी कैन फाइंड, हमको वहाँ पे सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन एक लाइन से यू कैन सी सम आइकन्स. दीज आइकन्स छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं. ये आइकन्स किसी न किसी सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर इस पे जो होता है, माई कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, फिर रिसाइकल बिन होता है. देन चिल्ड्रन यू कैन हैव सम प्रोग्राम्स ऑल्सो. विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है. उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के भी आइकन्स हो सकते हैं. सो दीज आर द आइकन्स. विद द डबल क्लिक वी कैन यूज दीज आइकन्स, एंड ये वो प्रोग्राम्स होते हैं हमें जो अक्सर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है. सो सेकेंड विंडो विच यू गेट इज डेस्कटॉप स्क्रीन. चिल्ड्रन, डेस्कटॉप स्क्रीन में हमारे पास आइकन होता है, टास्क बार होता है. नाउ सो चिल्ड्रन, लेट अस रीड अबाउट दिस वन बाय वन. अब हमें विंडोज के बारे में समझना है. तो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ विंडो. अब कंपोनेंट ऑफ विंडो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन, हियर कंपोनेंट्स ऑफ विंडो 7 स्क्रीन. सबसे पहले हमें विंडो 7 स्क्रीन, विंडो नहीं कंपोनेंट्स ना, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 स्क्रीन, SCREEN. विंडोज 7 का जो स्क्रीन है उसके कंपोनेंट्स को समझना है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस चिल्ड्रन. एज आई टोल्ड चिल्ड्रन, सपोज दिस इज योर विंडो, ये आपका विंडो है, दिस इज योर विंडो. अब इस विंडो में चिल्ड्रन यू कैन सी सबसे नीचे देयर इज अ बार, एक बार है. उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स हैं. हियर यू हैव स्मॉल आइकन्स. They may be in the form of text, in the form of picture या in the form of image. अलग अलग फॉर्म में ये आइकन्स होते हैं. ठीक है,
ये आइकन आपका हो गया, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। तो ये आपका हो गया डेस्कटॉप आइकन, दिस इज नोन एज डेस्कटॉप आइकन, ये डेस्कटॉप आइकन है। उसके बाद हमारे पास दिस इज टास्क बार, इसको हम टास्क बार कहते हैं, BAR बार। यहाँ पे एक राउंड सा बटन है जिसपे यू कैन सी इस तरह का कुछ बना हुआ है जिसको हम विंडोज कहते हैं, दिस साइन इज फॉर विंडोज, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस चिल्ड्रन यू गेट अ मेनू, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट मेनू विच विल ओपन अपवर्ड्स, जो अपवर्ड खुल जाता है। यू कैन सी ऑन योर बुक ऑल्सो, पेज नंबर 28 में देर इज अ मेनू विच ओपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। उसके बगल में हमारे पास है टास्क आइकन, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आइकन बना होता है, इसको हम टास्क आइकन बोलते हैं। वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज वन बाय वन चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या यहाँ पे है। देन हियर वी हैव नोटिफिकेशन, हमारे पास नोटिफिकेशन होता है, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद वी हैव, देन हियर वी हैव डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम होता है, TIME टाइम। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया है, ये नोटिफिकेशन एरिया है, दिस इज नोटिफिकेशन एरिया जहां वी गेट द नोटिफिकेशंस। ये टास्क बार है एंड दिस इज टास्क आइकन। अदर देन these are desktop icon and then we have, हम यहाँ हमारे पास ये भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है और हमारे पास कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज सिंबल फॉर विंडोज। कोई जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड पे हमारे यही हो, कुछ और भी हो सकता है, लाइक वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर हैविंग एज अ सेटिंग में हम क्या रखना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन या विंडो का स्क्रीन है। और ये पूरी जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड डेस्कटॉप, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, दिस इज डेस्कटॉप। उसके अलावा वी हैव एन एरो, दिस इज माउस पॉइंटर, दिस इज माउस POINTER pointer. So let us understand these things which are found on the desktop. One by one we are going to read and understand. So children, components of the Windows 7 screen. These are the components of Windows 7 screen. ये सारे Windows 7 screen के components हैं. So let us understand these one by one. On the computer desktop children, you will see the following items. If you open the desktop screen, जैसा कि मैंने बताया, जैसे भी हम मॉनिटर को ऑन करते हैं, वी हैव वन स्क्रीन जिसको हम वेलकम विंडो करते हैं, विच वेलकम्स अस टू द विंडो। लेकिन विंडो में एंटर करने से पहले वी नीड टू गिव आर इंट्रोडक्शन, मीन्स वी हैव टू सेटिस्फाई द लैपटॉप और कंप्यूटर। हमें पहले लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे भी हम काम करें उसे सेटिस्फाई करना है कि वी आर करेक्ट पर्सन और नॉट, हम करेक्ट पीपल हैं या नहीं, हु इज यूजिंग द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर कोई और भी लेकर के हमारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, चोरी भी कर सकता है, तो ये कुछ हमारी प्राइवेट चीज़ें होती है जिसमें हम अपने पर्सनल चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक श्योर कि वी आर द राइट पर्सन, दे आस्क फॉर द पासवर्ड। हमने इसमें पासवर्ड डाला होता है और वो पासवर्ड वो मांगता है। जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वी गेट अनदर स्क्रीन, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन, जो सबसे पहला स्क्रीन है फ्रॉम वेयर वी कैन डू एनी वर्क, जहाँ से हम कोई भी काम कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, वहाँ से हम कंप्यूटर को ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस कंप्लीट स्क्रीन चिल्ड्रन विच इज ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन, इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी टू परफॉर्म एनी फंक्शन, यहाँ से हम कुछ भी टाइप करके या माउस के क्लिक पर हम किसी चीज भी आइकन को ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले चिल्ड्रन डेस्कटॉप, वी शुड नो अबाउट द डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप है, ये पूरी एरिया जो है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। जितना भी रेक्टेंगल शेप का जो आपके पास सामने एरिया है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप का मतलब होता है इट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। यहाँ कंप्यूटर का मतलब होता है मॉनिटर। एज वी नो चिल्ड्रन, there is a switch, on off switch on the monitor also. We have already studied that most of the part have on off switch, CPU में भी होता है, मॉनिटर में भी होता है। तो इन ऑर्डर टू स्विच ऑन द कंप्यूटर
लास्ट स्टेप इज टू स्विच ऑन द मॉनिटर। जैसे ही हम मॉनिटर को क्लिक करते हैं, पे क्लिक करते हैं या उसके बटन को क्लिक करते हैं, तो जो हमारे पास स्क्रीन अपीयर होता है, फर्स्ट स्क्रीन इज वेलकम स्क्रीन। आफ्टर दैट it asks for the password. After giving the password, we have another screen. This is called desktop screen. Now it is an area where you work with your programs and documents. So in the computer we have our many programs, and also we have our documents. हमारे documents होते हैं. So if you want to work on the computer, this is the right place from where you can start working on the computer. Now देयर कैन बी डिफरेंट बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं, ये विंडोज़ का बैकग्राउंड मैंने लगाया है, इसके अलावा भी कोई और भी बैकग्राउंड हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सेटिंग में जाके क्या रखा है। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं, वो भी हम कोई भी उनमें से बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम विंडोज 7 का भी रख सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर सेटिंग, एज पर द सेटिंग वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ बैकग्राउंड। नो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप आइकन का मतलब होता है द स्मॉल बटन्स और पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जैसे कि मैंने बताया, ये छोटे छोटे बटन्स भी हो, इनको हम बटन्स भी कह सकते हैं, ये पिक्चर्स भी हो सकते हैं, और ये इमेजेस भी होते हैं, जिसको हम आइकन कहते हैं। दीज आइकन्स आर यूज्ड फॉर ओपनिंग और स्टार्टिंग एनी प्रोग्राम क्विकली। अगर हमको फट से किसी प्रोग्राम को यूज़ करना है, या वो प्रोग्राम जिसका हमको बहुत जल्दी मतलब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, उन सारे को हम डेस्कटॉप पे रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा भी डेस्कटॉप पे नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका मोस्ट ऑफन हम यूज़ करते हैं, सो वी कीप those programs in the form of these icons, and from here with the double click we can open the program and perform any task. तो ये छोटे छोटे वो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आइकन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये इसलिए डेस्कटॉप पे होते हैं सो दैट वी कैन इजीली ओपन दीज प्रोग्राम्स व्हेनेवर दे वी हैव नीड और वी वांट टू यूज इट। देन उसके बाद चिल्ड्रन, दीज कैन बी सम ऑफ द कॉमन प्रोग्राम्स आर, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपने देखा होगा नीचे भी इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी कभी होता है जो ई लिखा होता है, और उसके ऊपर एक राउंड होता है, एक राउंड होता है। दिस इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। अब इसको यहाँ पे ये होता है, और हम इसको आइकन में भी ये हो सकता है। तो सबसे ऊपर जो डेस्कटॉप पे हम रखते हैं वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इनमें से एक डॉक्यूमेंट की फाइल भी हो सकती है। देन वी कैन हैव कंप्यूटर, कंप्यूटर वाला ऑप्शन होता है जिसमें माई कंप्यूटर करके भी हो सकता है। देन वी हैव रिसाइकल बिन भी होता है, रिसाइकल बिन भी हो सकता है। देन वी कैन हैव नेटवर्क, नेटवर्क भी होता है, नेटवर्क वाला भी आइकन होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन आइकन्स विच मे हैव ऑन आर डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप मतलब कि सिंगल क्लिक में कोई भी चीज़ खुल जाए, इसलिए हम उसे डेस्कटॉप पे रखते हैं। अनदर थिंग इज माउस पॉइंटर। एक ये माउस पॉइंटर है, ये जो माउस पॉइंटर है चिल्ड्रन, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ फाउंड ऑन द डेस्कटॉप। आपने अक्सर देखा होगा जो माउस पॉइंटर होता है वो डेस्कटॉप पर ही रहता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ एरो। ये एक एरो के फॉर्म में होता है, और जब भी हमें किसी चीज़ को ओपन करना, किसी भी आइकन को ओपन करना है, इफ़ यू वांट टू ओपन एनी ऑफ द आइकन, यू विल ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द आइकन एंड यू विल हैव टू क्लिक फ्रॉम द माउस। अगर आप 2 बार क्लिक करते हो फ्रॉम द माउस, लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम खुल जाता है। समटाइम्स हम राइट क्लिक पे भी खोलते हैं, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स राइट क्लिक पे भी खुल सकते हैं, जिसमें कुछ हमें ढेर सारे मेन्यूज खुलते हैं, वहाँ से भी हम खोल सकते हैं, और उसके बाद हम इजीली डेस्कटॉप से ही उस प्रोग्राम को खोल सकते हैं। देन माउस पॉइंटर का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग, पॉइंटिंग, मूविंग और ओपनिंग द आइकन्स। तो इन सारी चीज़ों को हम आइकन को भी मूव कर सकते हैं, हम उसको रीसेटिंग कर सकते हैं उसकी। तो जो भी चीज़ें स्क्रीन पे है उनको शो करना हो, उनको दिखाना हो, उनको ओपन करना हो, उनको क्लोज करना हो, या फिर उनको मूव करना हो, तो वी यूज़ द माउस पॉइंटर। एंड माउस पॉइंटर इज़ अ स्मॉल एरो विच कीप्स ऑन ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन, जो हमेशा स्क्रीन पे ब्लिंक करता रहता है और अपने प्रेजेंस को हमें हाईलाइट करता रहता है, तो सो दैट इट इज़ इजीली स्पॉटेड। नाउ सो दिस इज माउस पॉइंटर। नाउ क्लिक और डबल क्लिक हम कभी कभी सिंगल क्लिक पे भी कर लेते हैं और डबल क्लिक पे भी कर लेते हैं। वेरियस आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप पे ही
हमारा माउस पॉइंटर भी होता है, एंड इट इज़ यूज्ड for operating any of the icon. And now children, as I told you yesterday also, I told you when I started with this Windows 7, children, nowadays we are not using keyboard for everything. पहले हम क्या करते थे, कीबोर्ड से टाइप करके कमांड्स देते थे और फिर कोई काम करते थे। प्रोग्राम, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम बनाते थे, लंबे चौड़े प्रोग्राम बनाते थे, उसके बाद हम उसको टाइप करते थे और उसको रन करते थे तो कोई भी काम होता था। उसके बाद फिर हमने कमांड्स टाइप करना शुरू किया था, कमांड टाइप करके भी हम काम करते थे। उसके बाद nowadays with a single or double click we are able to run any program or software। तो अब हमें हमारा काम आसान हो गया, हर चीज़ everything is available on the कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। किसी प्रोग्राम को भी रन करना है तो हमें कुछ भी अलग से कमांड नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ माउस को यूज़ करके क्लिक देना होता है। सो चिल्ड्रन, एज वी आर नॉट गिविंग द कमांड्स नाउअडेज, वी आर यूजिंग द क्लिक, सिंगल डबल क्लिक्स, वी आर नॉट यूजिंग द कीबोर्ड ऑल्सो। हम कीबोर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ हमको टाइपिंग के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, या समटाइम्स शॉर्टकट की यूज़ करना है तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो शॉर्टकट की से हम चीज़ें करते हैं वो हम माउस के क्लिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम उस चीज़ पे जा करके वहाँ क्लिक करके ऑप्शंस जो दिए रहते हैं वहाँ से भी हम क्लिक करके वी कैन ईजिली डू द वर्क। सो द माउस पॉइंटर, सो माउस पॉइंटर भी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। डेट एंड टाइम, एज यू सी चिल्ड्रन, दिस इज द कॉर्नर वेयर वी हैव डेट एंड टाइम। कंप्यूटर पे डेट और टाइम भी होता है, अगर हम सही सेटिंग करेंगे सही रहेगा, अगर हम नहीं सेटिंग करते हैं तो बहुत आगे पीछे देता है, इसलिए हम डेट और टाइम भी सेट करने का ऑप्शन होता है। हम सही या गलत जो भी उसमें होता है दैट इज शोन इन दिस कॉर्नर। तो हमारे हम अगर इस तरह से देखें तो हमारे राइट हैंड कॉर्नर में आपका डेट और टाइम शो करता है। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द करंट टाइम एंड डेट, ये करंट टाइम एंड डेट शो करता है ऑन योर कंप्यूटर। In this way, when we are working on the computer, we are easily able to find out the time and date and how much hours we have worked or how much we need to work. वो सारा हमें समझने में, जानने में आसानी रहती है। This is the current time and date on your computer. To see the full date position, the mouse over the time. जब आप टाइम पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डेट दिखाई देता है। टू चेंज द डेट और टाइम, क्लिक ऑन द टाइम। अगर हम टाइम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको पूरा टेबल खुल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन चूज और डू द करेक्शन इन द डेट एंड टाइम। सो दिस इज another thing, that is date and time, which can be seen on the board. Now next one is children, task bar. Task bar is present at the bottom of the डेस्कटॉप विंडो। ये पूरा टास्क बार है, तो इस पर जो भी आपके प्रोग्राम्स खुले होते हैं, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो सारे इस ये जो स्ट्रिप है नीचे इसमें दिखता है, तो इसे हम कहते हैं टास्क बार। ये पूरे स्ट्रिप को हम टास्क बार कहते हैं। और ये है टास्क आइकन, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसके लिए भी आइकन होता है, जो भी प्रोग्राम में हम काम कर रहे होते हैं उसके लिए जो आइकन होता है उसको हम टास्क आइकन बोलते हैं। जो काम चल रहा है वो भी दिखाई देता है, और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वहाँ पे दिखाई देता है, और बाकी के जो भी हम जो हमने फाइल्स खोली होती हैं या सॉफ्टवेयर खोला होता है वो सारा नीचे टास्क बार में हमें दिखाई देता है। सो द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप दैट कंटेन्स स्टार्ट बटन होता है। सबसे पहले आगे हमारे पास स्टार्ट बटन होता है, विच इज़ यूज टू स्टार्ट और क्लोज द शट डाउन द विंडो, या विंडो को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए तो हम मॉनिटर को ऑफ करते हैं, तो वो तो मॉनिटर के की से हम ऑन ऑफ बटन से हम करते हैं, लेकिन अगर हमको विंडो को बंद करना है तो हम स्टार्ट बटन से करते हैं, और स्टार्ट बटन से वी ओपन द मेन्यू ऑल्सो। मेन्यू होता है द चार्ट इन विच वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिसमें हमें अलग अलग प्रोग्राम्स दिए होते हैं। सो मेन्यू भी यहाँ से खुलता है। नाउ चिल्ड्रन, स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लॉक एट द राइट कॉर्नर। तो आप देख सकते हो एक कॉर्नर में दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट कॉर्नर पे वी हैव स्टार्ट बटन एंड राइट कॉर्नर पे वी हैव क्लॉक, हमारे पास क्लॉक होता है। सो देन चिल्ड्रन वी हैव कॉर्नर इज रिफर्ड टू एज द टास्क बार। तो ये जो हमारा पूरा ये लाइन है, स्ट्रिप है नीचे, इसको हम टास्क बार कहते हैं। द प्रोग्राम विच यू ओपन, एक्टिव प्रोग्राम, एज आई टोल्ड यू, द प्रोग्राम विच इज एक्टिव, ऑल दोज प्रोग्राम्स आर शोन ऑन द टास्क बार। जितने भी हमारा एक साथ प्रोग्राम एक्टिव होता है वो सारे टास्क बार में दिखाई देता है। तो जब हम शट डाउन करते हैं तो इन सारे प्रोग्राम्स को पहले बंद करते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। लेटेस्ट चिल्ड्रन, वी हैव कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज start button. As I told you, this is start button. This is used to shut down the
द विंडो को शट डाउन करने के लिए यूज़ होता है, रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, और स्लीप पे ले जाने, इफ़ यू वांट टू मेक योर लैपटॉप और कंप्यूटर स्लीप, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें 2-3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें रीड स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें होता है शट डाउन, या फिर लॉग आउट होता है, या फिर इसमें हमारे पास स्लीप वाला स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट एंड देन लॉग आउट वगैरह होता है। तो हम ये सारे कर सकते हैं, इसमें से जो भी हमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन इज अ बटन located at the bottom left corner of the desktop. This is our left hand, this is left corner, at the left corner you have start button. This is round in shape और इसमें window बना होता है। यहाँ पे देखो मैंने window बनाया है, this is start button. When you click this you get the menu. अब it contains different menu, और मेनू के अंदर भी मेनू आप अपने बुक में देख सकते हो। एक मेनू खुला, उसके साइड में दूसरा मेनू खुला, तो उसे हम सब मेनू कहते हैं। तो हर प्रोग्राम के अंदर कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं तो वो भी खुल जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सब मेनू। एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर कमांड भी इसी में होता है, विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे शट डाउन का या टर्न ऑफ का भी ऑप्शन होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं विच वी नीड टू परफॉर्म। नाउ नोटिफिकेशन एरिया का मतलब होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो हमारे पास एक एरो होता है। एरो में हमारे पास जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो नेट का कनेक्शन शो करता है, और वेदर वाईफाई इज एक्टिव और नॉट, नेट होता है, एरोप्लेन मोड होता है, और अगर पेन ड्राइव कोई लगाया है, एक्सटर्नल आपने स्टोरेज लगाया है वो भी शो करता है, ब्लूटूथ शो करता है। तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद अगर वाईफाई से कनेक्ट किया तो वाईफाई शो करता है। तो नोटिफिकेशन एरिया में वो सारी चीज़ें शो करता है जो कि आप कर रहे होते हैं। चार्ज शो करता है, आपका लैपटॉप कितना चार्ज है, मोबाइल कितना चार्ज है वो भी शो करता है। और उसके बाद तो ये सारी चीज़, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले स्मॉल आइकन्स, ये छोटे छोटे आइकन्स को डिस्प्ले करता है, दैट नोटिफाई यू अबाउट द टास्क्स दैट आर हैपनिंग ऑन योर कंप्यूटर। जो भी चीज़ें कंप्यूटर में हो रही होती है वो सबको वो करता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी नोटिफिकेशन इफ एन अपडेट ऑफ Windows 7 इज अवेलेबल। हाँ, जैसा कि आप मोबाइल यूज़ करते हो उसमें अपडेट मांगता है, तो अगर इसमें भी कंप्यूटर भी अपडेट मांगता है तो वो भी यहाँ शो करता है। अदर देन दैट इंटरनेट और योर प्रिंटर रन्स आउट ऑफ पेपर, अगर प्रिंटर आउट ऑफ पेपर रन कर रहा होता है, आप प्रिंटर यूज़ करें तो दैट ऑल्सो इट शोज। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो नोटिफिकेशन एरिया में शो कर रही होती है। इन केस यू आर यूजिंग द प्रिंटर, इफ प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर वो भी शो करेगा, एंड इफ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, इंटर है कि नहीं वो भी शो करता है। तो ये सारी चीज़ें भी, बैटरी कितनी चार्ज है या नीड्स टू बी चार्ज वो भी शो करता है। तो ये सारी चीज़ें नोटिफाई करता है, यानी आपको बताता है। उसके बाद टास्क बार आइकन, टास्क बार आइकन का है यू यूज दीज आइकन्स टू लॉन्च सम Windows 7 फीचर्स विथ अ क्लिक ऑफ द माउस। तो ये वो सारे होते हैं जिसको आप जैसे इस पे टास्क बार पे कुछ जो आइकन्स होते हैं यहाँ पे भी दिख रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो वो ऑलरेडी खोल के रखा होता है आपने, या फिर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो स्क्रीन पे अपीयर हो जाते हैं। जब आप मिनिमाइज करते हो वो वाले प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको हम टास्क आइकन के नाम से जानते हैं। तो जो काम हम कर रहे होते हैं उसके आइकन्स भी हमें नीचे वाले टास्क बार पर दिखाई देते हैं। तो दिस आर कॉल्ड टास्क आइकन्स। अब स्टार्ट बटन, मेनू लिस्ट भी होता है, ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स मेन्यू में या सब मेन्यूज में दिखाई देते हैं जो भी हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होते हैं। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 27, पेज नंबर 28, जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया चिल्ड्रन, यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम के नीचे एक और ऑप्शन होता है जिसमें सर्च का ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप उसे ढूंढना चाह रहे हो, तो आप वहाँ टाइप करोगे तो वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो और उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं, उसके सामने देयर आर सम मोर प्रोग्राम्स जो कि सब प्रोग्राम्स होते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर और भी जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम सब प्रोग्राम्स होते हैं कहते हैं। तो सब मेनू में सब प्रोग्राम्स होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट आइकन्स विच आर अवेलेबल ऑन द Windows 7 डेस्कटॉप। तो ये सारी चीज़ें हमारे Windows 7 डेस्कटॉप पे होती है। अदर देन दीज चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो इज स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एन एप्लीकेशन। अब हमने विंडो तो खोल लिया, विंडो खोल लिया, और विंडो खोलने के बाद हम काम कैसे करेंगे? काम करेंगे जब किसी एप्लीकेशन को खोलेंगे। तो नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट हाउ टू ओपन अ
प्रोग्राम और हाउ टू क्लोज अ प्रोग्राम या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजिंग विच वी डू वन और द अदर टास्क, जिसको यूज करके हम एक या दूसरे टास्क को करते हैं। अब काम करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सपोज यू आर डूइंग ड्राइंग, तो आपको ड्राइंग की ज़रूरत होगी, मतलब पेंट की ज़रूरत होगी, MS पेंट की ज़रूरत होगी। अब MS पेंट को आप कैसे खोलोगे, कैसे उस पर वर्क करोगे और कैसे उसको बंद करोगे, तो खोलना और बंद करना हम सीखेंगे। तो एप्लीकेशन का मतलब है जब हमारा डेस्कटॉप रेडी है काम करने के लिए। डेस्कटॉप का मतलब है कि हम डेस्कटॉप इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। डेस्कटॉप से हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। नाउ योर डेस्कटॉप इज रेडी टू परफॉर्म अ वर्क। नाउ यू शुड नो हाउ टू ओपन अ एप्लीकेशन एंड हाउ टू क्लोज अ एप्लीकेशन, क्योंकि जब काम करना है तो हमें एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन को हम कैसे खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म अ वर्क। फॉर परफॉर्मिंग अ वर्क यू शुड नो हाउ टू ओपन एंड क्लोज an application or a program. तो next video में children we will be reading about starting and closing an application. Application का मतलब है software application using which we can perform any task. तो next video में हम सीखेंगे कैसे हम इसको खोलेंगे, कैसे काम करेंगे. So children, thank you for today as we have completed the topic which we had to discuss. So go through the chapter. We have discussed only one topic. Learn difficult terms, and if you have any doubt, come with your doubts in the online classes. So children, here watch the videos and complete your work. Thank you and have a nice day ahead.